Hello children, welcome to my channel. The name of my channel is Samjho Chemistry Detail में. So that means I will make you understand all the concepts of chemistry in minute details. So please listen to me carefully, and by now in every school the chapter solution from plus 2 has been done in every schools, and that's why I am not discussing the topics. आपको पता है कि लास्ट ईयर से क्वेश्चन का पैटर्न जो है हमारा चेंज हो गया है, एंड नाउ यू आर टू सॉल्व 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, and in these objective type questions you are to solve the MCQs, and you are to solve the very short answer questions, you are to solve the assertion reason type of questions, so all these things. So I thought I would take up the objective type questions, that means MCQs and very short answer questions. and MCQs में हमने कुछ ऐसा questions भी लिया जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड है, और कुछ क्वेश्चंस है जो कि थ्योरेटिकल बेस्ड है. सो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में तो आपको बस कंसेप्ट को समझना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, बट इन केस ऑफ न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज आपको सॉल्व भी करना है और सॉल्व करके आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. So that's why I have taken both type of MCQs and I have taken some very short answer questions also. So let's begin the video. So now first of all, this is the problem. The problem is if 0.1 molar AgNO3 and 0.1 molar NaCl solutions are mixed in same volume, then what will be the concentration of NO3 minus ions? And these are the options. तो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद ही आपको करेक्ट ऑप्शन मिलेगा. सो आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए पहले जो चीज़ सोचना है वो है आपको NO3 माइनस का कंसंट्रेशन आपको पूछा है. तो NO3 माइनस जो है कौन सी जो है उसमें है, कंपाउंड में है. It is clear that NO3 minus ion is present in AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट में है. It is not present in NaCl, NaCl में नहीं है. और मिक्सिंग करने से पहले NO3 माइनस जो कि AgNO3 के प्रेजेंट है, AgNO3 के अंदर प्रेजेंट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा. कॉन्सेंट्रेशन जो कि AgNO3 के कॉन्सेंट्रेशन है सेम विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस, बिकॉज AgNO3 डिसोसिएट्स इन दिस मैनर. AgNO3 dissociates to form Ag plus NO3 minus. So आपको दिख रहा है कि 1 mole AgNO3 upon dissociation produces 1 mole of Ag plus and 1 mole of NO3 minus. So whatever is the concentration of AgNO3 before mixing, same will be the concentration of NO3 minus. And what is the concentration of AgNO3? It is 0.1 molar. So NO3 minus का concentration भी उतना ही होगा, that is 0.1 molar. So we can write in this way कि concentration of AgNO3 will be equal to concentration of NO3 minus, and that is equal to 0.1 molar. अब हमें अप्लाई करना है कि मिक्सिंग के बाद आपको बताया गया है कि आपको दोनों सोल्यूशन को इक्वल वॉल्यूम में मिक्स करना है. दैट मीन्स अगर आप AgNO3 का 1 cc लेते हो तो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन का भी आपने 1 cc लेना है, और इक्वल वॉल्यूम में दोनों को मिक्स करने से व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. मिक्सचर का फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 2x cc. So 2x cc is the final volume of the mixture, and ये 2x cc final volume में NO3 माइनस का क्या कॉन्सेंट्रेशन है वही आपसे क्वेश्चन है, तो आपको वही सॉल्व करना है. तो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, M1V1 is equal to M2V2. M1 is the concentration of the original solution, V1 is its volume, and M2 is the concentration in the final solution, desired solution. V2 is the volume. So ये जो हमारा फॉर्मूला है M1 into V1 is equal to M2 into V2. इसमें M1 है AgNO3 का जो कंसंट्रेशन, जो आपका ओरिजिनल सोल्यूशन है जिसमें NO3 माइनस है, उसका कंसंट्रेशन 0.1 लगाओ, और इसकी वॉल्यूम हमने क्या लिया, दोनों का इक्वल वॉल्यूम लिया. तो इसका हमने अगर 1 cc लिया, इसका भी हमने 1 cc लेना है, तो ये 0.1 into x इज इक्वल टू कितना हो गया,
फाइनल जो आपका मिक्सचर है जिसकी वॉल्यूम 2x cc है, उसमें आपने कंसंट्रेशन NO3 माइनस का निकालना है, तो M2 इंटू 2x हो गया है। अब M2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 0.1 इंटू x डिवाइडेड बाई 2x, x cancels and 1 by 20, and so it is 0.05 molar. So this is how this option will be the correct option. So this is how we have solved this one. Now we will take the next problem. Another problem, another numerical based MCQ. And it is this, 29.2% weight by weight मतलब मास, weight by weight मतलब मास में आपको दिया गया है 29.2% HCl stock solution has density of 1.25 gram per milliliter. The molecular weight of HCl is 36.5 gram per mole. The volume of the stock solution required to prepare 200 milliliter solution of 0.4 molar HCl is, your options are number 1 5 milliliter, number 2 6 milliliter, number 3 8 milliliter, and number 4 15 milliliter. So here you are to first of all do what, आपको सबसे पहले जो स्टॉक सोल्यूशन है, स्टॉक सोल्यूशन का मोलरिटी कैलकुलेट करना है, और उसके बाद ही आप ये सेकेंड पार्ट को कर पाओगे कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस डिजायर्ड सोल्यूशन, जो कि 200 ml है वॉल्यूम और उसकी मोलरिटी है 0.4। तो इसके लिए आपको सबसे पहले स्टॉक सॉल्यूशन की मोलरिटी कैलकुलेट करना है, और उसके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आपको स्टॉक सॉल्यूशन में बता दिया गया इट इज 29.2% वेट बाय वेट HCl स्टॉक सॉल्यूशन। वेट बाय वेट मतलब 29.2 ग्राम HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। So if 29.2 gram HCl is present in 100 gram of the solution, तो आपको पता है कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। नाउ नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हो आप, मास को मोलर मास से डिवाइड करके, HCl का मास आपका 29.2 ग्राम है और उसका मोलर मास भी दे दिया गया है, दोनों को डिवाइड करने से आपको HCl का नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। और जो आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो सॉल्यूशन का मास 29.2 ग्राम इज प्रेजेंट,
HCl is present in 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, तो 100 ग्राम को अगर सॉल्यूशन का डेंसिटी से आप डिवाइड कर देते हो तो आपको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मिलीलीटर में आएगा, उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो वो हो जाएगा लीटर में। सो लेट्स सॉल्व दिस। ये आपका स्टॉक सॉल्यूशन, स्टॉक सॉल्यूशन की मोलरिटी will be equal to number of moles of HCl divided by volume of the solution in liter। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए तो 29.2 डिवाइडेड बाय 36.5 हो जाएगा, और नीचे आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मीन्स 100 ग्राम को आपको डिवाइड करना पड़ेगा डेंसिटी से, जो कि 1.25 है, और ऊपर में 1000 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट हाउ मच इट इज 29.2 बाय 36.5 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाय 100, और ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 को इंटू 1000। तो अगर हम ये डेसिमल पॉइंट हटा देते हैं, ये वाला डेसिमल पॉइंट नीचे 100 लाओ, तो ये 3 0 2 0 1 0 कैंसिल हो गया। अभी जो है आपको क्या करना है, 5 से अगर आपने कैंसिल कर दिया, 5 2 10 एंड 5 25 25 सर 125। नाउ 25 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो 365 को, तो देखो कितना आ रहा है। 25 से आप जो है 365 को डिवाइड करो, तो 1 टाइम 25 115 4 100 and 15 decimal point 06, so it is 14.6। अब ये 2 से 292 कैंसिल हो करके ये भी 146 आ जाएगा। सो 146 और 14.6, ये डेसिमल पॉइंट अगर आप हटाते हो एक 10 आ जाएगा ऊपर। 146 कट गया, आपका स्टॉक सोल्यूशन का मोलरिटी आ गया 10 मोलर। स्टॉक सोल्यूशन का मोलरिटी 10 मोलर आने के बाद अब आपको डिजायर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए स्टॉक सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम चाहिए, वो तो M1V1 इक्वल टू M2V2 रिलेशन से ही आपको कैलकुलेट कर सकते हो। सो लेट्स डू दैट। स्टॉक सोल्यूशन का याद रखना, मोलरिटी आया है 10 मोलर। सो M1V1 is equal to M2V2। सो स्टॉक सॉल्यूशन का मोलरिटी 10 है, इसकी वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, कितना चाहिए इसका टू प्रिपेयर दिस सॉल्यूशन, जो कि 200 मिलीलीटर है और जिसकी मोलरिटी है 0.4 मोलर। सो 0.4 इंटू 200, सो V1 will be equal to what? 0.4 into 200 divided by 10. So it will be 80 decimal point. So it is 8 ml. So which one is the correct answer? This one is the correct answer. So 8 ml आपका स्टॉक सॉल्यूशन का चाहिए, जिसकी मोलरिटी है 10 मोलर to prepare 200 milliliter solution of HCl which has molarity 0.4 molar. So this is how we have solved two numerical based MCQ question. So let's see the questions which I have written on the right hand side of the board. They are the MCQs only, but then they are the theoretical questions. So you need not have to calculate anything. You have to just
apply the concept of the lesson so that you can find out the correct option. So first question you see, theoretical question में, on dissolving sugar in water at room temperature the solution feels cool to touch. Under which of the following cases the dissolution of sugar will be most rapid? The conditions are sugar crystals in cold water, sugar crystals in hot water, powdered sugar in cold water, powdered sugar in hot water. So आपको पता ही है कि as it is written कि on dissolution the solution feels cool to touch, that means हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ है यहाँ पे, और शुगर जब डिजॉल्व किया पानी में तब उसने पानी से ही हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, एंड दैट्स व्हाई यू कैन से द प्रोसेस इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस. और इस प्रोसेस में हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ है, और हीट का एब्जॉर्प्शन की वजह से सोल्यूशन जो है ठंडा हो गया है, एंड इट फील्स कूल टू टच. सो इन दिस केस द डिसोल्यूशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शुगर प्लस वाटर प्लस हीट, ये बना रहा है solution. So as the process is endothermic in nature, so high temperature will favor the formation of the solution. That means dissolution will be favored as if the temperature is high. So hot solution तो हमें चाहिए ही. अब बात है कि crystalline sugar लेना है कि powdered sugar लेना है. It is very easy that you know, all of you know that crystalline form में the size of the particles are very big. But when you take the powdered sugar, then the size of the particles are very small, and these small sized particles, they can easily go into the space between the solvent molecules, and that's why our correct option will be in this case this one, powdered sugar in hot water. So ऐसे ही देख करके तो हम ऐसे ही अपना कॉमन सेंस अप्लाई करके हम बता देंगे कि दिस वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, लेकिन अगर लॉजिकली सारे कंसेप्ट्स को आप जो है समझते हो तो इस तरह से आपको समझना है कि दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, शुगर का डिसोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन जब आप शुगर को डिजोल्व कर देते हो तो सोल्यूशन ठंडा हो जाता है. ठंडा तभी होता है जब हीट का एब्जॉर्प्शन होगा. अगर हीट का प्रोडक्शन होगा तो सोल्यूशन विल बिकम वार्म. This was this question. Then the next question, another question is which of the following statements is false? इनमें से कौन सा वो स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है? राइट स्टेटमेंट नहीं पूछा है आपको, फॉल्स स्टेटमेंट निकालना है. तो देखो फॉल्स स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर द सेम. इसमें तो कोई शक है ही नहीं, दोनों ही प्रेशर है तो प्रेशर का यूनिट तो सेम होगा ही. दैट मीन्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट और जो ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट दे विल बी सेम, देयर इज नो डाउट इन इट. उसके बाद हम चलते हैं थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट में. जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट है, थर्ड में देखो क्या बताया है, द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट. मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मीन्स आपने पढ़ाई है लेसन में, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मीन्स इट इज KF. So molar depression constant always depends upon the nature of the solvent. जैसे कि आप न्यूमेरिकल में हमेशा ही देखते हो कि आपको जब KF की वैल्यू दी जाती है न्यूमेरिकल में, तो कहा जाता है कि KF फॉर वाटर, KF फॉर बेंजीन. जहाँ पे आप देखोगे कि अगर KF फॉर वाटर लिखा गया है तो वाटर को एज सॉल्वेंट यूज किया गया है. अगर KF फॉर बेंजीन है तो आप देखोगे कि बेंजीन को वहाँ पे सॉल्वेंट हिसाब से यूज किया गया है. सो KF वैल्यू जो कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, that depends upon the nature of the solvent. So this is also a correct statement. And the last statement is relative lowering of vapor pressure is a dimensionless quantity. It is also a true statement. What is the expression of relative lowering of vapor pressure? Vapor pressure का lowering जो है होता है, ये टॉपिक में मैं अभी नहीं जा रही हूँ, बिकॉज आपको पता है कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे
then the solution always has less vapor pressure than compared to the solvent. कॉन्सेप्ट तो आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है, कॉन्सेप्ट यही है और कुछ नहीं है कि जब आप एक प्योर सॉल्वेंट लेते हो और उसी सॉल्वेंट का सेम अमाउंट में अगर आप सॉल्यूट को डिजोल्व कर देते हो तो जो वेपर है वो वेपर बनता है सरफेस से, तो सरफेस में कुछ सॉल्वेंट की जो जगह है उसमें सॉल्यूट पार्टिकल आ जाता है, जिसकी वजह से सॉल्वेंट का एस्केपिंग टेंडेंसी जो है डिक्रीजेस, एंड दैट्स व्हाई द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो ये तो हमें पता है कि सॉल्यूशंस वेपर प्रेशर इज लेसर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अब ये जो डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर जो लेस है देन कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ये डिक्रीज को कहा जाता है लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, जो कि आपका ये एक्सप्रेशन होगा पी नॉट से अगर हम प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं और पी एस से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को, तो ये पी नॉट माइनस पी एस जो डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड lowering of the vapor pressure, and if it is divided by P naught then it will be called relative lowering of vapor pressure. So relative lowering of vapor pressure is a dimensionless quantity. Why? Because ऊपर में भी प्रेशर नीचे भी प्रेशर, दोनों का यूनिट कैंसिल हो जाने से it will be simply a number, and that's why it is rightly said that it is a dimensionless quantity. ठीक है, सो ये तीनों स्टेटमेंट हमने देख लिया 1, 3 and 4, दे आर द राइट स्टेटमेंट्स, दे आर नॉट द फॉल्स स्टेटमेंट्स, बट देन द सेकंड वन यू हैव टू थिंक अबाउट द सेकंड वन। इन रिवर्स ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू ए एसपीएम, एसपीएम मतलब सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, जो कि सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं जाने के लिए, सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करते हैं। सो रिवर्स ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू ए एसपीएम from a region of lower concentration of the solute to a region of higher concentration। इस चीज को समझते हैं एक छोटा सा डायग्राम बना के। ये सपोज आपका एक बड़ा सा बीकर है, इस बीकर में आपने बीच में एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन को रखा, ये आपका एसपीएम है, और इस साइड में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इस साइड में सपोज डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, आपका ये जो ऊपर में आपने जो है प्रेशर आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रिकैपिचुलेट द कंसेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस। आपको पता है ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसके कारण जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, इस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है दे विल फ्लो। ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दे विल फ्लो टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड। डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है। एंड ये जो है ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक कि मेम्ब्रेन की दोनों साइड में सॉल्यूशन दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो बराबर ना हो जाता है। दोनों का कंसंट्रेशन व्हेन इट विल बिकम इक्वल देन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस विल बी स्टॉप्ड, and till then the movement of the solvent molecules from the dilute solution side to the concentrated solution side or from the solvent side to the solution side will continue. तो after that हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर में। अगर आप ये जो सॉल्वेंट की एंट्री थ्रू द एसपीएम अगर आप रोकना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सॉल्यूशन साइड में, ये जो सॉल्यूशन साइड है इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रेशर जब आप उतना प्रेशर अप्लाई कर दोगे ताकि जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड it is prevented, then that excess pressure जो है that is called osmotic pressure of the solution। उतना प्रेशर आपने अप्लाई करना है ताकि सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है फ्रॉम द डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड इट इज स्टॉप्ड।
then that pressure, extra pressure is known as, जो कि आपने solution side में apply किया, that will be called the osmotic pressure of the solution. Now the thing is that what is reverse osmosis? Reverse osmosis में क्या किया जाता है, ये जो solution side में pressure apply किया जाता है, that is more than the osmotic pressure of the solution. Solution का osmotic pressure जितना है उससे भी ज़्यादा greater pressure इस साइड में अप्लाई कर दिया जाता है. जब ऐसा किया जाता है तब एक रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाता है. और वो रिवर्स प्रोसेस क्या है, ये जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है इसमें से अभी सॉल्वेंट क्या करते हैं, सॉल्वेंट जो है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन के तरफ जो है मूव करके जाएगा, फ्लो होकर के जाएगा थ्रू द एसपीएम. जो सॉल्वेंट का फ्लो है, पहले जब ऑस्मोसिस चल रहा था तब भी जैसे यहां से यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जा रहा था. ऐसा नहीं है कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस तरफ नहीं जा रहा था, लेकिन द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गोइंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, दैट मीन्स फ्रॉम द डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, दे वर मोर, मच मोर देन कंपेयर टू द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स crossing through the SPM from the concentrated solution to the dilute solution. Now when you have applied pressure greater than the osmotic pressure of the solution, then what will happen? The reverse process, that is the movement of the solvent particles through the semi-permeable membrane to the semi-permeable membrane to the dilute solution will take place. That means यहाँ पे जो बताया गया है इस ऑप्शन में कि इन रिवर्स ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू द एसपीएम फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. ऐसा नहीं है, इससे ये जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डाइल्यूट सॉल्यूशन के तरफ जा रहा है ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस, देन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है. दैट मीन्स इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. इन रिवर्स ऑस्मोसिस द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास through the region of higher concentration of the solute particles to the region of lower concentration of the solute particles. Not this जो कि लिखा हुआ है कि region of lower concentration of the solute to the higher concentration of the solute, ऐसा नहीं है. So this statement is the wrong statement, false statement. So this is the answer. So today up till here. We will meet again in the next video, and this is a request to you at the last that please like, share and most importantly subscribe this channel and hit the bell icon and go to all option so that you get the notifications every time. Whenever I release a video, you get the notification first of all, and you can watch the video. And I hope this video, this question answers which we have solved, that will be beneficial for you. And thank you so much for watching the video.